بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج آپ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز کی یہ 23ویں ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قرہ الغمیم سے 15 میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ قوم میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کی موضوع جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا، یہی راستہ تھا جہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا، لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئیں اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ وہ مارچ 628 کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا، مگر خالد اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل رات سے قرہ الغمیم کی پہاڑیوں میں گھوم رہا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے وہ نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوار، اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھوڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300-400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کے دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنے قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئے ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے کہا، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کرنے کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدائے ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھوڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایت کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قرہ الغمیم تک چلے جائیں، لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینے والوں کا ہر اول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینے کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक मुश्किल ये भी थी कि अहले मदीने में कोई एक आदमी भी ना था जो उस रास्ते से वाकिफ होता। ये एक और दरा था जो मुस्निया अल मरार कहलाता था। उसे ज़ात अल हंजल भी कहते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उस दरे में दाखिल हो गए और सिलसिला कौ के ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ से कोई नहीं गुजरा करता था। वो रास्ता किसी के गुजरने के काबिल था ही नहीं। खालिद की नजरें मुसलमानों के हर अव्वल दस्ते पर लगी हुई थीं, लेकिन हर अव्वल के ये 20 सवार रुक गए थे। कभी उनके 2-3 सवार दरे तक आते और इधर उधर देखकर वापस चले जाते। अगर वो 20 के 20 सवार दरे में आ भी जाते तो खालिद उन्हें गुजर जाने देता, क्योंकि उसका असल शिकार तो पीछे आ रहा था। इन 20 सवारों पर हमला करके वो अपनी घात को बेनकाब नहीं करना चाहता था। ये कोई पुराना वाकया नहीं था, चंद दिन पहले की बात थी। खालिद परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का लश्कर अभी तक नजर नहीं आया। क्या उसने कुछ मुलतवी कर दिया है या उसे घात की खबर हो गई है? उसने अपने एक शितर सवार से कहा कि वो अपने बहरूप में जाए और देखे कि मुसलमान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस दौरान 20 मुसलमान सवारों ने अपनी नकल व हरकत जारी रखी। 1-2 मरतबा वो दरे तक आए और जरा रुक कर वापस चले गए। 1-2 मरतबा वो पहाड़ियों में किसी और तरफ से दाखिल हुए। खालिद छुप छुप कर उधर आ गया। वो सवार वहां से भी वापस चले गए। इस तरह उन्होंने खालिद की तवज्जो अपने ऊपर लगाए रखी। खालिद के सवार इशारे के इंतजार में घात में छुपे रहे। सूरज गुरूब हो चुका था जब खालिद का शितर सवार जासूस वापस आया। वो वहां नहीं है। जासूस ने खालिद को बताया, क्या तुम्हारी आंखें अब इंसानों को नहीं देख सकती? खालिद ने तंजिया लहजे में पूछा। सिर्फ उन इंसानों को देख सकती हैं जो मौजूद हों। शितर सवार ने कहा, जो नहीं है वो नहीं है, वो कूच कर गए हैं। किधर गए हैं मैं नहीं बता सकता। खालिद और ज्यादा परेशान हो गया। सहरा की शाम गहरी हो गई तो उसने महसूस किया कि मुसलमानों के हर अव्वल के सवार भी वहां नहीं हैं। उसे इनके किसी घोड़े के हनहनाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह तिलु हुई तो खालिद ने उसी दरे से निकल के देखा 20 सवार गायब थे। उसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। उसके इरादे और उसके जंगी मंसूबे खाक में मिलते नजर आए। उसने सोचा कि वो खुद अस्फान तक चला जाए, लेकिन पहचाने जाने के डर से रुका रहा। उसने 2-3 आदमी ऊंची पहाड़ियों पर भेज दिए कि वो हर तरफ नजर रखें। दिन आधा गुजर गया था, उसे कोई इतला ना मिली। मुसलमानों के हर अव्वल के 20 सवार भी नजर न आए। उसे तवक्का थी कि वो आएंगे। दोपहर के लगभग उसका एक सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता उसके पास आकर रुका। मेरे साथ चलो, सवार ने तेज तेज बोलते हुए कहा। जो मैंने देखा है वो तुम भी देखो। क्या देखा है तुमने? सवार ने कहा, खुदा की कसम वो गिर्द किसी काफिले की नहीं हो सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुसलमानों का लश्कर हो? खालिद ने घोड़े को एड़ लगाई और मक्का की सिमत पहाड़ी इलाके से निकल गया। उसे जमीन से गिर्द के बादल उठते दिखाई दिए। खुदा की कसम, खालिद ने कहा, कबीला कुरैश में कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दानिशमंद हो। वो मेरी घात से निकल गया है। मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में किरा अल गमीम की दूसरी तरफ से मक्का की तरफ निकल गए थे। रात को उनके 20 सवार भी दूर के रास्ते से उनके पीछे गए और उनसे जा मिले थे। खालिद ने घोड़ा मोड़ा और एड़ लगाई। वो किरा अल गमीम के अंदर चिल्लाता और घोड़े को सर पर दौड़ाता फिर रहा था, बाहर आ जाओ, मदीने वाले मक्का को चले गए हैं। तमाम सवार सामने आओ। थोड़ी सी देर में उसके 300 घोड़सवार उसके पास आ गए। वो हमें धोखा दे गए हैं। खालिद ने अपने सवारों से कहा, तुम नहीं मानोगे, वो गुजर गए हैं। गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब जिंदगी और मौत की दौड़ लगानी पड़ेगी। सुस्त हो जाओगे तो वो मक्का का मुहासरा कर लेंगे। वो बाजी जीत जाएंगे। आज मदीने के रास्ते पर जब मदीना करीब रह गया था, खालिद को याद आ रहा था कि उसे मक्का पर मुसलमानों के कब्जे का डर तो था, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चाल पर ऐश ऐश कर उठा था। वो खुद फने हर्ब व ज़र्ब और अस्करी चालों का माहिर और दिल दादा था। वो समझ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अव्वल के 20 सवार धोखा देने के लिए भेजे थे। सवारों ने उसे कामयाबी से धोखा दिया, उसकी तवज्जो को गिरफ्तार किए रखा और मुसलमान दूसरी तरफ से निकल गए। ये जादू नहीं, खालिद ने अपने आप से कहा, अगर अपने कबीले की सरदारी मुझे मिल जाए तो जादू के ये करतब मैं भी दिखा सकता हूँ। ये सही था कि उसके बाप ने उसे ऐसी अस्करी तालीम व तरबियत दी थी कि वो मैदान जंग का जादूगर कहला सकता था, मगर उसके का
वो कबीले का सालारे आला भी था। उसके मातहत खालिद अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। अपनी इस मजबूरी ने उसके दिल में अबू सुफियान की नफरत पैदा कर दी थी। उसे चंद दिन पहले का ये वाकया याद आ रहा था। 1400 मुसलमान उसकी घात को धोखा देकर मक्का की तरफ निकल गए थे। उसने ये सोचा ही नहीं कि 300 सवारों से मुसलमानों पर अकब से हमला कर दे। उसे एहसास था कि जो मुसलमान कलील तादाद में कसीर तादाद के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, उन्हें 300 सवारों से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कसीर तादाद में हैं। उसे मक्का हाथ से जाता नजर आने लगा था और उसे ये खुफत भी महसूस होने लगी थी कि उसकी घात की नाकामी पर अबू सुफियान उसे ताना देगा और हंसी उड़ाएगा। फिर उसे कुरैश की शिकस्त और मक्के के सकूत का मुजरिम कहा जाएगा। उसने अपने सवारों को एक रास्ता समझाकर कहा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंचना है। ये दूर का रास्ता था, लेकिन वो मुसलमानों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके 300 सवारों ने घोड़ों को एड़े लगा दी। रास्ता लंबा होने की वजह से 3 मील का फासला 1.5 गुना हो गया था, जिसे खालिद रफ्तार से कम करने के जतन कर रहा था। अरबी नस्ल के आला घोड़े शाम से बहुत पहले मक्का पहुंच गए। वहां मुसलमानों की अभी हवा भी नहीं पहुंची थी। मक्का के लोग घोड़ों के शोर और गुल पर घरों से निकल आए। अबू सुफियान भी बाहर आ गया। क्या तुम्हारी घात कामयाब रही? अबू सुफियान ने पूछा। वो घात में आए ही नहीं, खालिद ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए कहा। क्या तुम मक्के के इर्द गिर्द ऐसी खंदक खुदवा सकते हो जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के इर्द गिर्द खुदवाई थी? वो कहाँ है? अबू सुफियान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुझे उनकी कुछ खबर दो? जितनी देर में तुम खबर सुनते और सोचते हो, इतनी देर में वो मक्के को मुहासरे में ले लेंगे, खालिद ने कहा। हब्बल और अज़ा की अजमत की कसम, वो पहाड़ों और चट्टानों को रौंदते आ रहे हैं। अगर वो किरा अल-गमीम से किसी और रास्ते से गुजरते हैं, वो इंसान नहीं, कोई प्यादा वहां से इतनी तेजी से नहीं गुजर सकता जितनी तेजी से वो गुजर आए हैं। नाजरीन गिरामी, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।